Hello viewers, myself Barkha Gupta, speech therapist, running Hearsay Well Speech and Hearing Clinic. Two branches we have, one is in Noida and one is in Delhi. Uh, we are dealing a lot of cases with fluency problem, like we can say stammering and stuttering. So today I want to discuss about why do people stammer, yeah, stutter. What is the reason behind this? Uh, Dear viewers, I want to say there are many reasons behind stammering. There are many myths behind all, and a lot of things, lot of theories are there. Someone are saying there are genetic components due to the genetic problems, if in their parents and in their maternal side, yeah, in their paternal side, if they have a stammering, yeah, fluency problems, then they have a stammering. So yes, this is correct. The sometimes it's happened due to the genetic problem also, because I am dealing now lot of cases in which their uncle have a stammering, yeah, their father have a stammering, and child is having same problem. And stammering generally, see, the boys have more this problem compared to girl. There are 4:1 ratio. Next point, next reason is there is no any physical abnormalities behind that. सो यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि माउथ में प्रॉब्लम हो, या फिर लाइक टंग में प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई गले में प्रॉब्लम्स हो, लाइक कोई कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. सो देर इन द स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म देर इज़ नो एनी एबनॉर्मेलिटीज़ वी कैन से. जैसे अगर लोग कुछ लोग बोलते कि टंग में तालू जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से बोल तो नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई गले में प्रॉब्लम है, बट इन स्टैमरिंग really I'm saying there is no any physical abnormalities. Sometimes it's happen, but not all of the cases. Not this is a basic one of the reason for stammering. There is, if tongue tie, then the child or adult person have a stammering problem due to tongue tie, या there is any physical abnormalities. No, it's not like that. Yes, sometimes the tonsil is there, adenoid is there. Due to that only, there are some component, maybe there may be some component कि due to tonsil या adenoid the air is blocking while coming out and he is facing problem. So maybe the one of the point, but that physical abnormalities generally stammering के cases में नहीं होता है. And everything is like structures like trachea, we can say trachea है, या फिर breathing problem, breathing aspects में जितने भी mouth का organs है, lips, tongues and all these things, vocal folds, voice production, everything is normal. And ये बहुत ही situation wise vary करता है. समटाइम्स ये क्या होता है कि कभी बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड ये एज रिलेटेड, किससे हम बात कर रहे हैं, सेक्स रिलेटेड, द अपोजिट सेक्स के सामने अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर वी आर टॉकिंग फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़, देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. when we are talking to the boss, या when we are talking through the ग्रुप में बात करने के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये जो स्टैमरिंग है इस सिचुएशन वाइज वेरीज करता है. द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट जो रीज़न है इसके पीछे वो है इन्वायरमेंटल. स्टैमरिंग समटाइम्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस सिचुएशन वाइज भी प्रेसिपिटेट करता है. One of the theories is saying capacity and demand theory. The brain have a less capacity and the environment are demanding more. Sometimes parents have more demand when child is doing learning, and जब बच्चा होता है और वो बोलना सीखने शुरू करता है, तो स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द केसेस, जो 90% ऑफ बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे लर्न करते हैं बोलने के टाइम में, तो वो हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं. बट
समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट एंड दे यूज टू टेल, नहीं कैसे बोल रहे हो ये, हाउ यू आर स्पीकिंग, और वो बार बार उसको रोकते हैं, और उसकी वजह से बच्चा बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाता है एंड बहुत टेंशन में आ जाता है, और उसकी वजह से भी वो धीरे 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 बहुत टेंशन्स उसके माइंड में चलते जाता है, एंड देन ही गॉट नर्वस वाइल टॉकिंग एंड वाइल producing the sound. So the environmental is the also reason. Sometimes बच्चा स्कूल चेंज करता है, पेरेंट्स जनरली आस्क कि मैम बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बट वाई स्टैमरिंग, इसको अचानक से ऐसे कैसे आ गया स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, अचानक से हकलाकर बात करने लगा है। तो मे बी उस टाइम में बच्चा जो है या तो स्कूल गया हो और उसकी न्यू टीचर आई हुई हो, नए इन्वायरमेंट में गया है, वहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रहा है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर बहुत ज़ोर से डांट दिया हो उसको कभी, और बहुत ज़ोर से डांट दिया हो और उसको बहुत डर बैठ गया हो, किसी चीज़ का डर हो जाता है, तो उस टाइम में भी बच्चा जो है स्टैमरिंग प्रेसिपिटेट कर जाता है। घर में भी कुछ ऐसी इन्वायरमेंट्स होती हैं कि पेरेंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर्स, एंड बच्चा बहुत इस चीज़ों को देखता है, एंड दे ही यूजुअली साइकोलॉजिकली ही टेक्स टेंशन एंड ऑल, एंड उस टाइम में भी वो बहुत सहमा सहमा सा, कुछ साइकोलॉजिकल रीजन्स भी इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है बच्चे को स्टैमरिंग प्रेसिपिटेट करने में। द अनदर रीज़न, बच्चा मे बी, बच्चे को देखा गया रिसर्च में कि अगर बच्चा हाई फीवर हुआ है, उसको बहुत हाई फीवर से जब बच्चा होता है, या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया हो, और वो बीमार होने की वजह से वीक हो गया है, और बीमारी की वजह से जब बाहर आता है वो, उसके बाद वो हकलाकर बोलना शुरू करता है। तो ये भी रिसर्च बोल रहा है, ये भी रिसर्च में देखा गया है कि ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि मीजल्स या मम्प्स में भी के बाद भी देखा गया है कि बच्चे में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी देखा गया है कॉजेज़ में कि न्यूरोलॉजिकल, बच्चा गिर गया, अब बच्चे को ब्रेन में डैमेज हो गया, ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया, एंड वो वैसा प्रॉब्लम नहीं जो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन उस गिरने के बाद ये देखा गया है रिसर्च में, और बहुत सारे पेरेंट्स का भी आता है ऐसा कंप्लेन केस हिस्ट्री में, कि बच्चा गिर गया था बचपन में, और उसके बाद वो फिर धीरे धीरे हकलाना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है स्टैमरिंग प्रेसिपिटेट करने का। So there are no any one reason, one theory कि this is the one pin point कि इसकी वजह से मेरा बच्चा जो है स्टैमरिंग कर रहा है। लेकिन हाँ, we can say the environmental reason, genetically, physical, and then we can say the न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा गिर गया और उसके बाद स्टैमरिंग प्रेसिपिटेट कर गया। सो ये सारे रीज़न हैं, और बहुत सारे मिथ हैं इसके लिए कि आप बच्चे को बहुत अच्छे, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं नानी के हाथ से बादाम ला के खिलाओ, जूठे कौवे के जूठे खाने को खिलाओ तो उससे स्टैमरिंग ठीक हो जाता है। बट आई विल टेल यू कि मैंने इतने केसेस डील किए हैं स्टैमरिंग के, चाइल्डहुड केसेस एंड एडल्टहुड केसेस, बहुत सारे केसेस डील किए हैं, और उसमें देखा है मैंने कि ऐसा ये दिस इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, एंड ये सही नहीं है। या जो बादाम देते हैं वो मे बी दैट इज़ हाईली प्रोटीनिशियस, एंड वो प्रोटीनिशियस है, न्यूट्रिशन है, बच्चा कभी वीक हो जाता है तो वो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन उसको एक डाइट हम दे रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, तो ठीक हो जाता है, ठीक हो सकता है, थोड़ा सा हेल्दी बच्चा हो जाता है, तो ही स्पीक्स। तो ये, लेकिन ये एकदम सही नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स आकर हमसे पूछते हैं इसके बारे में, तो आई विल से यू कि दीज आर द ओनली मीथ, एंड द स्पीच थेरेपी से 100% इम्प्रूवमेंट होता है। ये मैंने प्रूवन है मेरे लिए। तो मैंने बहुत सारे केसेस को डील किए हैं और जिसमें बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप थेरेपी लेते हैं और उसके बाद जो फॉलो अप होता है
जनरली स्पीच थेरेपी में क्या होता है कि जब स्टैमरिंग होती है और जल्दी से बच्चा ठीक हो जाता है, या फिर एडल्ट में 20 सेशंस या 24 सेशंस या 1-2 मंथ्स में अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ठीक हो जाने के बाद फॉलो अप नहीं होते हैं। तो फॉलो अप नहीं होता है, उसकी वजह से ये री अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सो आई विल से यू कि मिथ में ना रहें और गो फॉर एंड ऑप्ट द स्पीच थेरेपी। आप एक स्पेशलाइज लोगों से स्पीच थेरेपी लो जिनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है स्पीच थेरेपी के लिए फॉर स्टैमरिंग, बिकॉज सभी लोगों का स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। कुछ लोग चाइल्डहुड केसेस डील करते हैं, कुछ लोग एडल्टहुड केसेस डील करते हैं, कुछ लोग ऑटिज्म को डील करते हैं, कुछ लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डील करते हैं, जिनका फ्लुएंसी में स्टैमरिंग को लेकर के काफ़ी अच्छा वर्क है। एंड आई हैव सीन, मेरे पास 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे भी आते हैं, हमारे पास एडल्ट में बहुत सारे लोग हैं, और मैं देखूँ तो हमारे पास 65 ईयर्स वाले भी लोग आते हैं, 45 ईयर्स, 35 ईयर्स। सो देर इज़ नो एनी एज क्राइटेरिया कि कब स्टार्ट करना है। जनरली पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम बच्चा मेरा हकला रहा है, कब से शुरू करना है। आई विल सजेस्ट कि जितना अर्ली अगर स्टार्ट हो जाता है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। क्या स्टैमरिंग में क्या होता है कि दिस इज सोशल स्टिग्मा। आपका जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज़ तो बैठते जाता है, बहुत लोगों का रिएक्शंस आता है आपके लिए, आपके लोग फन बनाते हैं एंड आपका जोक बनाते हैं एंड दे लाफ ऑन यू, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे बहुत सारे पेरेंट्स एंड पेशेंट्स जो हैं शेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ा है। तो जितना अर्ली हम स्टार्ट करते हैं थेरेपी एंड बच्चे उसके माइंड में ये नहीं जाना चाहिए कि आई हैव ए स्टैमरिंग एंड मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू।